स्वागत है दोस्तों आपका आपके YouTube चैनल पर BS कॉमर्स एजुकेशन लर्न समथिंग विथ मी। नाउ वी हैज बीन स्टार्टेड अ बिजनेस कम्युनिकेशन फ्री सीरीज फॉर अ चॉइस बेस्ड क्रेडिट system or a semester pattern of Savitribai Phule Pune, especially for those standard which has been the second year bachelors of commerce semester third, BBA specializing subject of CA and IB semester first. And today we are going to see a topic which is unit number 4th, resume writing and job application letter part 14th। जी हाँ दोस्तों, आज हम पार्ट 14th स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फ्री सीरीज का बिजनेस कम्युनिकेशन का। एंड ऑफ कोर्स प्रेजेंटेड बाय मी असिस्टेंट प्रोफेसर बैसाने पर्वतराव भीमराव। सो लेट्स बिगिन माय डियर फ्रेंड पार्ट नंबर 14 ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन फ्री सीरीज। Let's just start it with the introduction of this chapter or this unit. Into the behalf of any organization, if we are going for gives interview or any reason for a presentation, we have to prepare some important points to present ourselves. Now, my dear friends, you know that very well the think of that happening a resume writing and job application letter. Now everywhere or the any organizations, if I goes for the giving interview, that time I need to prepare ourselves, and that is the thing. It means how to prepare ourselves. So presentation of yours, resume writing is the preparation self of yourself. So that is the particular thing has been happen to be there into the behalf of any organization। कोई भी organization में if we are going to for gives interview, यदि अगर हम interview देने जाते हैं या फिर और एनी रीजंस फॉर प्रेजेंटेशन या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, तब हमें खुद का प्रेजेंटेशन बनाना बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब ये कि मैं यदि अगर मेरे रिज्यूम में ठीक से प्रेजेंटेशन कर पाऊँ खुद की, तो शायद मुझे चांसेस रहते हैं वहां पर जॉब मिलने के। वी हैव टू प्रिपेयर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू प्रेजेंट अवर सेल्फ। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पर हम हमारी सेल्फ को प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे बायोडाटा हो गया, रिज्यूम हो गया, करिकुलर विटा हो गया। सो दैट कंसिडरेबल पॉइंट टू बी हियर। एंड लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट बायोडाटा मीनिंग। अभी हम बायोडाटा के बारे में डिस्कशन करेंगे मेरे दोस्तों। बायोडाटा, दिस वर्ड refers to the biographical details of somebody. It is the first introduction of the candidate to the employer and explain the candidate's background. Now, what is a biodata? Biodata is the word has been refers to the biographical details of somebody. Anybody who goes for the taking interview or who goes for a giving interview, I'm said anybody, and this particular person has been given his details in one paper, and this paper has been called as a biodata. And now biodata has been defined of these two words, bio and data. Now bio, it's meant by what? Biographical, right? Bio, it's meant by what? Biographical. And data, it's meant by what? Details of the somebody or the some particular person. So this is known as a biodata. It is the first introduction of the candidate, and now we know that this is what biodata is, the first introduction of the candidate. Another things has been given to be there as a resume, curriculum vitae, or a job application letters. But now biodata is the first introduction of the any candidate. Before 10 years ago, we seen that some interviewer persons has been prepare a resume, but now others and many more interviewer persons has been prepared for a biodata, just only a biodata. यदि अगर आपको मालूम होगा कि अभी लड़की की शादी करनी है, तो आप क्या प्रिपेयर करते हैं? रिज्यूमे प्रिपेयर करते हैं या बायोडाटा प्रिपेयर करते हैं? बायोडाटा प्रिपेयर करते हैं। मान लीजिए यदि अगर आपको कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है, तो अभी आप कौन सा क्या चीज प्रिपेयर करते हैं? तो अभी आप रिज्यूमे प्रिपेयर करते हैं, बायोडाटा नहीं प्रिपेयर करते। बिकॉज ऑफ व्हाट? बायोडाटा वी सीन दैट दिस शुड बी ओल्ड डेटेड, एंड नाउ द न्यू वर्जन हैज बीन देयर इज अ रिज्यूमे और द करिकुलम विटाई। हमें लगता है कि यार बहुत रिज्यूमे अच्छा है, बायोडाटा थोड़ा सा ओल्ड हो गया। सो दैट पर्टिकुलर थिंग्स हैज बीन हैपन। बट यदि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इट इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द कैंडिडेट टू द एम्प्लॉयर एंड एक्सप्लेन द कैंडिडेट्स बैकग्राउंड। जी हाँ दोस्तों, बायोडाटा एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होता है हमारा, 2 या 1 पेज होता है हमारा बायोडाटा का। एम्प्लॉयर को हम खुद के बारे में वहां पर एक्सप्लेन करने की
अनुमति देते हैं। एंड एक्सप्लेन द कैंडिडेट्स बैकग्राउंड, और यहाँ पर हम हमारे खुद का बैकग्राउंड एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे मैं यहाँ से ये किया हूँ, मैं वहाँ से वो किया हूँ। सो दिस इज नोन एज अ बायोडेटा में। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बायोडेटा ठीक से मैं यहाँ पर उसकी मीनिंग समझा पाया हूँ। नाउ लेट्स just cover up to the essentials elements of biodata. What are the essentials element to be needed while preparing or drafting a biodata? Now the number first point has been given to the here as a personal data. Now while I prepare or drafted a biodata, I wants to or I needed to mention our personal data or my personal data I am said. Now into the personal data, what should I use to there, or what should I mention to be there into the personal data? So my dear friends, into the personal data we have to mention our full name with the father's name and date of birth, mobile number. If you have mail ID, then please mention it mail ID into your personal data. And if you have a STD number in your home, then please go ahead for the mention of in personal data, your gender, date of birth, and so these particular things has been happening or has been mentioned to the personal data. So this is essential element of biodata. Number first is a personal data. Now let's see to the next one, education. Now into the education we have to mention our education details by like that. How you mention your details? So you see that I think so आपने कोई ना कोई तो बायोडाटा या फिर रिज्यूमे तो देखा ही होगा। हम क्या करते हैं, पहले सीरियल नंबर लेते हैं, राइट, क्या किया वो लेते हैं, एग्जाम, फिर एग्जाम कब दी वो लेते हैं, फिर बोर्ड लेते हैं, ओके, ईयर ऑफ पासिंग लेते हैं, परसेंटेज लेते हैं। तो दिस पर्टिकुलर थिंग ये सालों साल से ऐसे ही चलता आया है। सालों साल से सभी बंदे ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं, बायोडाटा हो, रिज्यूमे हो, करिकुलम विटाए हो। बट यदि अगर आप कुछ डिफरेंट तरीके से मेंशन करना चाहते हैं, इफ यू वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंटली मेंशन ऑफ योर एजुकेशन डिटेल्स, प्लीज गो अहेड। Because of what, this is the thing or this is the introductory paragraph or the introductory thing while you are gives your biodata to the employer वही रिज्यूमे चूज करता है, वही रिज्यूमे सिलेक्ट करता है जो अच्छे दिखते हैं, जो बेहतरीन दिखने का प्रयास करते हैं। नाउ मेरा पॉइंट ये था कि एजुकेशन डिटेल्स में आप क्या क्या मेंशन करते हैं। नाउ इनटू द एजुकेशन डिटेल्स यू हैव टू मेंशन ऑल योर एजुकेशन डिटेल्स। इट मींस बाय टू द एलिमेंट्री टू non-metric to metric और the post graduate और the graduation part. It's mean यदि अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें एजुकेशन के बारे में, तो आपको यहाँ पर क्या मेंशन करना है, आपको यहाँ पर एसएससी मेंशन करना है, ओके, आपको यहाँ पर एचएससी मेंशन करना है, आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन मेंशन करना है, आपको यहाँ पर आपका अगर पीजी हो गया है पोस्ट ग्रेजुएट तो प्लीज गो अहेड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। इफ यू हैव एनी अदर क्वालिफिकेशन यू मस्ट बी मेंशन टू एज अ other qualification or other education. So these are the part considerable to be into the educations. Now let's see to the next one. As the essential elements of the biodata, number third point has been the work experience. Now friends, please mention this point as a work experience while you use or the while you um, put it out this work experience. At least 1 year should be a mention it, at least 1 year. हम क्या करते हैं कि हमने जेरोक्स पे कहीं पर काम किया, जेरोक्स मशीन दुकान में कहीं पे काम किया 3 महीने, तो वो भी मेंशन कर देते हैं, चलिए वो छोड़ दिया काम। फिर हमने 2 महीने कहीं पर दूसरी कंपनी में काम किया, वो भी मेंशन कर देते, वो भी छोड़ देते हैं। फिर हमने मान लीजिए 6 महीने किसी कंपनी में काम किया और 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस दिखाई दिया। यहाँ पर दिख क्या रहा है कि आपको 3 महीने का एक्सपीरियंस है, वेरी गुड, आपको 2 महीने का एक्सपीरियंस है, वेरी गुड, आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, वेरी गुड। बट यहाँ पर एक कंसिडरेबल पॉइंट ये हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों कि एम्प्लॉयर ये सोचता है, एम्प्लॉयर ये थिंक करता है आपके बारे में कि ये बंदा ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। देन व्हाई आई चूज ऑफ हिम और हर, व्हाई आई चूज, क्या जरूरत क्या है मुझे ऐसे बंदे की कि जो 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में काम छोड़ के चला जाएगा। So that is the particular thing happen to be the work experience while you mention it. Please at least mention 1 year should be a work experience as. यदि अगर आप कहीं पर भी काम पर लगते हैं मेरे दोस्तों, तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस यदि अगर आपके पास में है तो ही वो मेंशन करें। यदि अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों तो प्लीज मेंशन मत कीजिए। 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस कहीं पर भी काउंट नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं, प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट में नहीं, कहीं पर नहीं। सो एटलीस्ट 1 year शुड बी मेंशन एज अ वर्क एक्सपीरियंस। नाउ लेट्स सी नंबर फोर्थ पार्ट, extra curriculum activities. It includes all those things which are important for a job role. Now
एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, हमें यहीं पर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते क्या है। तो व्हाट आर द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज? सर हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में पता ही नहीं सर, हम तो मेंशन करते ही नहीं सर, हमने शायद पहली बार ये वर्ड सुना सर। बट कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की यदि अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर अ जॉब रोल। ये वो थिंग्स होते हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर यदि अगर आप किसी स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक करिकुलम एक्टिविटीज जोड़नी बहुत जरूरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि अगर मैं प्रोफेसर की इंटरव्यू देने जाता हूँ, ओके, व्हाइल आई गिव्स फॉर द इंटरव्यू एज अ प्रोफेसर्स पोजीशन और द प्रोफेसर्स qualifications of point of view or the employer of point of view. Now that time I have to mention as a extracurricular activities into the professor's qualification. So what are the extracurricular activities to be there as a professions? So some extracurricular activities is by my paper presentation, okay, then after my paper publications, then after my book publications, okay. So these are the part cover up as extracurricular activities or my participations of seminars, international seminars, conferences of my participations. So these are the participations part। और यदि अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में तो यहाँ पर ये कंसिडरेबल हो जाते हैं। जैसे यदि अगर आपने स्पोर्ट्स में कहीं पर पार्टिसिपेशन किया है, स्पोर्ट्स में कहीं पर आपने योगदान दिया है तो वो हो गई आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। कल्चरल एक्टिविटीज में आपने कहीं पर पार्टिसिपेशन लिया है तो वो हो गया आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। कल्चरल एक्टिविटीज कौन से होते हैं? गैदरिंग ऑफ द कॉलेज, राइट। सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज, तो सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज में आपने कहीं पर, जैसे मैंने अभी यहाँ पर कहा कि पेपर प्रेजेंटेशन है मेरी एक सर्टिफिकेशन एक्टिविटी है। लीडरशिप एक्टिविटी आपने कहीं पर पार्टिसिपेशन किया है। सो दीज आर द पर्टिकुलर थिंग्स हैज बीन हैपनिंग टू एज अ extracurricular activities। Now into the leadership activities we have to define as a two things जो कि मोस्टली हर एक कॉलेज में होते हैं। क्या? एक होता है एनएसएस और एक होता है एनसीसी पार्ट, सॉरी अबाउट दैट, एनसीसी पार्ट होता है मेरे दोस्तों। तो ये जो पार्ट होते हैं वो होते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बायोडाटा अंडर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। So let's cover up to the next one point, essentials elements of biodata, references। Now while you use as a references into the your biodata, please mention the references detail as brief. It's mean by references person's detail as a brief, full name of that person, detail of that person, position of that person, address of that person, mobile number of that person, mail id of that person. So these are the pointable views or these are the points to be the mentioned as a references while you use as a reference into the biodata. Number 6, presentations. You must use white bond paper and computerized generated prints for your biodata. Now, while presentation of this one thing, you have to mention as a presentation on white bond paper। जैसे कि हम बायोडाटा यदि अगर अभी कोई भी बंदा हाथ से नहीं लिखता है, बट यदि अगर आप प्रिंट भी करते हैं ना तो व्हाइट, पूरा व्हाइट पेपर होना चाहिए, उसके ऊपर आप वो प्रिंट लीजिए। वो क्या दिखता है कि आपका प्रेजेंटेशन वहां पर अच्छा है। मार्जिन वहां पर छोड़िए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, राइट। कुछ गैप वहां पर रखिए, आप ये देखो कुछ स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहते हैं। और हम जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि कंप्यूटर जनरेटेड प्रिंट होनी चाहिए। तो दिस इज नोन एज अ प्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बायोडाटा। Let's see a biodata. Now this is a biodata, my dear friends. Now it's simple format of biodata: name, father's name, mother's name, date of birth, height, weight, gender, complexions, fair or any qualification, other qualification, brothers, sisters, marital status, address, contact number, mailing address, contact number, exactly डबल कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं ना हमारे पास में कई बार, जैसे फादर का हो गया, मदर का हो गया, तो दैट शुड बी अ पर्टिकुलर थिंग हैज बीन दी मेंशन टू दी हियर। तो दिस इज जस्ट एज अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ बायोडाटा, माय डियर फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच ऑफ दिस वीडियो सीइंग, माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चाय पी लेते दोस्तों, बहुत थक गए यार। जी हाँ सर, आप चाय तो पिलाते थे नहीं। दोस्तों क्या आपको और सीखना है? जैसे कि अभी आपने वीडियो देखा और आप यदि अगर चाहते हो और भी सीखना तो आपको क्या करना है दोस्तों? तो कुछ नहीं करना है। तो चलिए जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और बदले में क्या आप पा सकते हैं? तो 4 यूनिट लेक्चर सीरीज, 4 यूनिट एक्सप्लेनेशन विथ लेक्चर्स एंड 4 यूनिट रिविजन्स। तो दोस्तों ये 3 चीज़ मैं यहाँ पर आपको
मेरे लेक्चर के माध्यम से पढ़ाऊंगा। व्हाट आई टीच यू और विच यूनिट्स आई टीच यू, कौन से यूनिट मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट यूनिट आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, नंबर सेकंड आ जाता है बिजनेस लेटर्स, नंबर थर्ड आ जाता है सॉफ्ट स्किल्स, नंबर फोर्थ आ जाता है रिज्यूम राइटिंग एंड जॉब एप्लीकेशन। ये यूनिट रहेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोर्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है पर वीक 5 लेक्चर, per week 1 lecture for a revision, per week 1 lecture for a discussions. Lecture time is flexible or suitable with the students. Number 5th, class should be taken on Google Meet with the extra securities and link should be sent before half an hour with a password or a direct joining on your registered mail ID. इसमें दो चीज़ें बहुत अहम बन जाती हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि क्लास शुड बी टेकन ऑन गूगल मीट। जी हाँ, गूगल मीट के ऊपर मैं क्लास लूंगा तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज ऑफकोर्स मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। नंबर 6 यहाँ पर है लिंक शुड बी सेंड बिफोर हाफ एन आवर। आपको जो मैं लिंक सेंड करूंगा वो हाफ एन आवर के बीच में लिंक सेंड करूंगा, या उसका पासवर्ड भी सेंड कर सकता हूँ या फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक भी सेंड कर सकता हूँ आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी के ऊपर। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप जो मेल आईडी मुझे प्रोवाइड करेंगे वो आपका वही रहना चाहिए जिसके माध्यम से आप गूगल मीट को ज्वाइन करोगे और जिसके माध्यम से आपका नाम मुझे समझ में आ जाए। और यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख पा रहे हो कि 5 लेक्चर्स रहेंगे, एक लेक्चर रिवीजन के लिए, माफ कीजिए 5 लेक्चर्स आपके कंप्लीट रहेंगे, उनको छोड़ के एक लेक्चर आपका रिवीजन का रहेगा, एक लेक्चर आपका डिस्कशन करेगा। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। दोस्तों आपको पेमेंट कैसे करनी है, तो पेमेंट आपको गूगल पे या फोन पे के जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे 4 यूनिट्स विथ एक्सप्लेनेशन फीस। 4 यूनिट जो अभी आपने देखे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसकी फीस बन जाती है 599 रुपीज़। और यूनिट पीडीएफ जो एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर आपको करूंगा, उन्हीं की पीडीएफ आपको एग्जाम के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट वो देगी, बहुत इंपॉर्टेंस अहमियत उसकी रहेगी। उसकी प्राइस मिलाकर है 4 यूनिट की 299 रुपीज़, और 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, उसकी प्राइस होगी 199 रुपीज़, और टोटल प्राइस यहाँ पर बन जाती है 1097 रुपीज़। अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है बट मैं भी ज़्यादा देने का प्रयास कर रहा हूँ, बट तो भी तो दोस्तों अभी चलिए देखते हैं। बाइंग बिफोर 31 दिसंबर इट विल बी बेनिफिटेड टू यू, लेट्स सी। 31 दिसंबर से पहले यदि अगर आप बाय करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलने के चांसेस रहेंगे। कौन से बेनिफिट सर, तो चलिए बेनिफिट भी फटाक से देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी प्राइस कितनी हो जाती है 1097 रुपीज़। और यहाँ पर यदि अगर मैं डिस्काउंट दे दूँ आप लोगों को, ऑफर दे दूँ, दिसंबर की ऑफर 31 दिसंबर अभी आ रहा है तो उसकी ऑफर यदि अगर मैं दे दूँ तो आपको यहाँ पर मैं डिस्काउंट अलाउड कर रहा हूँ 54.5%, ना कि 50%, 50% नहीं, 50% के ऊपर का मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। और यहाँ पर कुल मिलाकर 1097 में से अमाउंट कितनी माइनस हो जाती है 598 रुपीज़, और एक्चुअल अमाउंट आपकी कोर्स की हो जाती है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कोर्स 499 रुपीज़। और मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ों के लिए 499 रुपीज़ ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ जो है पीडीएफ जो आप कभी भी पढ़ सकते हो, लाइफ टाइम है आप लोगों के लिए, ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यदि अगर पुणे यूनिवर्सिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेती है तो इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, फ्री में है। और ये तो भाई इसकी प्राइस तो सेम रहेंगी, मतलब इसमें भी मैंने माइनस किए हैं बट 100 रुपीज़ ही माइनस किए। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये प्राइस बहुत हाई है, बहुत कॉस्टली है। और यहाँ पर ध्यान दें, पे बिफोर 5 जनवरी कि 31 दिसंबर की ऑफर है, 31 दिसंबर से भी यदि अगर आप पहले पे करते हैं तो आपको 499 रुपीज़ में ही ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। 5 जनवरी तक 12 नून, राइट, 12 नून माफ कीजिए, 12 रात के 12 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो 499 रुपीज़ अमाउंट तक। 5 जनवरी से आगे यानी कि 6 जनवरी को आप यदि अगर पेमेंट करने जाओगे तो आपको कोर्स की जो फीस रहेगी वो 1100 मतलब 1097 रुपीज़ में आपको वो कोर्स मैं प्रोवाइड करूंगा। ध्यान दीजिए, हाउ टू ज्वाइन कोर्स, कोर्स को कैसे ज्वाइन होना है, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं, वो ठीक से समझ लीजिए तभी जाकर पे कीजिए दोस्तों। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस बिफोर ज्वाइन क्लास और सी वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सारी इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़ लीजिए या फिर मेरा वीडियो देख लीजिए यूट्यूब चैनल के ऊपर का जो मैं अभी ये
आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। नंबर सेकेंड, पे वोल फीस बाय गूगल पे और अ फोन पे ऐप। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी फीस आपको मुझे पे करनी है 499 रुपीज़, या फिर आप 5 जनवरी से के बाद में पेड करते हो तो 1097 रुपीज़ पे करनी है। कैसे? गूगल पे से या फिर फोन पे से। पे करने के बाद में क्या करना है? आफ्टर पे टेक अ स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वो स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो आप की जो पेमेंट हो गई वहाँ पर आपको रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। वो रिसिप्ट को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हैं, और करना ही है, तभी मुझे मालूम होगा कि आपकी वो पेमेंट है। और ध्यान दें, आपका व्हाट्सएप नंबर भी वही होना चाहिए जो आप हमेशा यूज़ करते हैं। कोई भी व्हाट्सएप नंबर से वो सेंड मत कीजिए दोस्तों। आफ्टर सेंडिंग स्क्रीनशॉट टू मी, आई विल प्रोवाइड यू अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जी हाँ, स्क्रीनशॉट सेंड करते ही मैं चेक करूँगा कि आपकी पेमेंट हो गई है तो मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंड करूँगा। वो फॉर्म सेंड करने के बाद में ध्यान दें कि उस फॉर्म में आप वही नाम लिखिए जिससे आप गूगल मीट के माध्यम से मेरे चैनल को, या फिर गूगल मीट के माध्यम से वो कोर्स को ज्वाइन होना चाहते हो। और नोट में देखिए, इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू नीड टू मेंशन ओनली दोज मेल आईडी विच यू आर गोइंग टू साइन इन ऑन गूगल मीट। वही रजिस्टर्ड मेल आईडी आपको मुझे प्रोवाइड करना है जहां से आप उसको ज्वाइन होने वाले हो। जी हाँ, कोर्स को वही। यदि अगर आप वो नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपको मैं डिक्लाइन कर दूंगा दोस्तों, इतनी बात ध्यान में रखिए। So this one has been to the how to join a course, and course should be started on 10th January 2020 21 to the, या to till the syllabus is end। तब तक चलते रहेगा जब तक सिलेबस हमारा एंड नहीं हो जाता है। तो जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें और जुड़ जाएं बीएस कॉमर्स एजुकेशन के साथ में दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। सी नेक्स्ट पार्ट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।